Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to the Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Monday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have related to stock markets, economy and business world. But please do remember that we will not give you information about individual stocks and companies in this program. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23421050 and 23310464. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम के साथ मार्केट मंत्रा के साथ हम हाजिर हैं। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आप हमसे श्रोताओं व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 23314444 और 23421050। हमारा तीसरा नंबर है 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले STD कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल। अमन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Amrish. Yes, friends, let's begin with the headlines. Rally in domestic equity markets continued for the fourth consecutive session. Sensex jumped 256 points to close at 82,445. Nifty also climbed 100 points to close above 25,100. All major Asian markets today ended with gains amid optimism ahead of the resumption of US-China trade talks. And oil prices showed a positive trend today. घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का रुख आज लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। सेंसेक्स 256 अंक की बढ़त के साथ 82,445 अंक और निफ्टी 100 अंक बढ़कर 25,100 अंकों पर बंद हुआ। अमेरिका चीन व्यापार वार्ता पुनः शुरू होने से पहले उम्मीद भरे माहौल में सभी प्रमुख एशियाई बाजारों में बढ़त दर्ज की गई और कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी दिखाई दी। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का रुख आज लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। निफ्टी दिन के कारोबार में एक बार 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रियल्टी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में खरीदारी दिखाई दी। रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को ब्याज दरों में उम्मीद से अधिक 50 आधार अंकों की कटौती के बाद बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में लगातार मजबूती दर्ज की गई। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 256 अंक यानी 0.3% की बढ़त के साथ 82,445 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बाजार बंद होने के समय 100 अंक यानी 0.4% बढ़कर 25,103 अंकों पर जा पहुंचा। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में और अधिक तेजी दिखाई दी। मिड कैप सूचकांक 1.03% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक ने बढ़त
0.19% की रही। Rally in domestic equity markets continued for the fourth consecutive session, with Nifty hitting an 8-month high during the day amid buying in all sectors except realty. The banking and financial stocks showed continued strength after RBI's more than expected 50 basis point rate cut on Friday. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex jumped 256 points or 0.3% to close at 82,445. The National Stock Exchange's Nifty 50 also climbed 100 points or 0.4% to close at 25,103. The broader market indices showed an even stronger trend. BSE Mid-Cap Index surged 1.03%, while the Small Cap Index closed with a 1.19% gain. In the Sensex Index, 23 out of 30 companies ended with gains. Among the top gainers, Kotak Bank rose 3.2%, Bajaj Finance gained 2.63%, and Axis Bank added 2.24%. Among the top losers today, Eternal plunged 1.89%, ICICI Bank lost 1.68%, and Titan closed with a loss of 0.76%. In sectoral indices at the BSE, 20 out of 21 sectors closed in positive territory. Among the top gainers, utilities jumped 1.65%, power gained 1.43%, services sector rose 1.35%. The only sector to fall today was realty, which lost a marginal 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,798 companies advanced, shares of 1,409 companies declined, while shares of 128 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 108 companies hit their 52-week high, while 20 hit their 52-week low. We will resist the temptation to discuss all this, Aman, because we have now with us, waiting for a long time, Nitin Kumar calling us from Delhi. जी नितिन जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। नमस्कार जी जी जी। सर मैं 3 सवाल चुनी होते। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण हमारे देश में किन किन चीजों पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिससे महंगाई चीजें महंगी हो गई हमारी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो महंगी हो चुकी हैं। और दूसरा सवाल ये है कि ये गोल्ड इतने हाई पहुंचने के बाद कभी नीचे आता ही नहीं है, इसका कारण क्या होता है। और तीसरा एक छोटा सा सवाल है, आज ही हमने इसको देखा है कि इंटरेस्ट रेट एफडी पे कम हो गए हैं, तो गवर्नमेंट बैंक में 7.20 है सीनियर सिटीजन का, और प्राइवेट बैंक में हमने जानकारी ली, वहाँ किसी के पास 8% है, किसी के पास 8%, 8.25 है, 8.25%। तो 1 रुपए का फर्क कैसे आ रहा है 1% का। आपने बड़े अच्छी बात करी। पहली बात तो मैं आपके एफडीज की बात बता दूं कि इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट कट किया था, ये देखने के लिए कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े और साथ ही साथ जो होम लोन्स हैं, लोन्स की जो दर होती हैं वो कम हो, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके और इन्फ्लेशन में भी थोड़ी रिलैक्सेशन हो सके। तो उसको देखते हुए कम किए थे, इस वजह से कम होती नज़र आ रही हैं। जो ये अंतराल आपको नज़र आता है प्राइवेट और सरकारी बैंकों में, सरकारी बैंक में भी कुछ स्कीम्स हैं जो 5 साल की स्कीम है जैसे, या फिर आपकी जो स्कीम है कुछ 444 दिन की है, 440 दिन की, अलग अलग उन्होंने स्कीम्स निकाल रखी हैं, उनके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली बैंक जो ट्रेजरी होता है उनको जो है वो उनका काम होता है पैसे आपसे लेते हैं और लोगों को लोन देते हैं। ये तरीके से पेमेंट कमिटमेंट्स होती हैं, उनको देखते हुए अलग अलग बैंक अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो रेट दर तय करता है उनका ट्रेजरी। और प्राइवेट बैंकों को क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, तो इसलिए उनको ज़रूरत पड़ती है। जिनकी लिक्विडिटी पोजीशन कंफर्टेबल होती है वो बैंक आपको रेट ज़्यादा नहीं देंगे, वो कम ही देंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या वो सरकारी बैंक हो। तो ये तो आपका अंतर रहा सरकारी और प्राइवेट का। दूसरा, आपने जो यूक्रेन और रशिया का वॉर का बात किया, देखिए अब इस वॉर को चलते हुए करीबन 1.5 साल हो गया है और ऑलमोस्ट एक्टिवली जो है, और बाकी अगर हम देखें जो छुटपुट शुरू से चल रहा है उसको 3 साल हो गए हैं। हिंदुस्तान का बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ जो वहाँ पढ़ रहे थे। इसके अलावा कुछ सामान जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से इंपोर्ट करते थे, शुरुआत में ही उसका नुकसान होना शुरू हो गया था। तो इसलिए आज के समय में हम कहें कि हमें कोई नुकसान हो रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा है। उल्टा
कि जो वॉर होती है उसके जब डिस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। तो चाहे दवाइयों की रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे स्टील की रिक्वायरमेंट हो, और चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, डिफेंस इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, तो इस समय तो जो यूक्रेन है हिंदुस्तान को फ़ायदा दे सकता है नुकसान की जगह, क्योंकि यहाँ से जो पैदावार हो रहा है वहाँ पे जाके बिक सकता है वो, और उसकी मांग बढ़ सकती है। तो इसलिए इस समय तो वो फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ जो आपने पूछी थी वो गोल्ड की बात थी। गोल्ड जो है, पहली बात, हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। करीबन 2/3 गोल्ड हम ऑफिशियली इंपोर्ट करते हैं। 1/3 गोल्ड में से भी करीबन 60 से 70% स्मगल होकर हिंदुस्तान में आता है, जो एक आम आदमी खरीदता है, सेंट्रल बैंक नहीं खरीदता है। उसके बाद भी हिंदुस्तान कभी गोल्ड की प्राइस नहीं सेट करता है, ये सेट होती है लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और वहाँ से जब हिंदुस्तान में उस प्राइस को लिया जाता है तो एक्सचेंज रेट का एक फैक्टर आता है बहुत बड़ा कि किस रेट पे हमें एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो जो हमारा थोड़ा एक्सचेंज रेट गिरा, उस वजह से जो है गोल्ड की प्राइसेस ऊपर की तरफ गई। अगर अब जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, पर आरबीआई की पॉलिसी बहुत तेज बढ़ाने को नहीं रहती है, अगर वो बढ़ेगा, जैसे इस समय जो रेट चल रहा है वो 83-84 के आसपास घूम रहा है, वो अगर बढ़ के 70 की तरफ जाता है तो आप देखेंगे इमीडिएटली गोल्ड की प्राइसेस कम होंगी। दूसरा, एक कमोडिटीज एक्सचेंजेस हैं उसमें भी ट्रेडिंग होती है गोल्ड की, तो उससे भी एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिलता है कि किस रेट पे जो आपको बेचते हैं गोल्ड साहूकार वो किस रेट पे खरीद रहे हैं, और उसकी वजह से भी महंगा और सस्ता होता है। जी, और चलते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे श्रोता संजीव लाइन पे हैं। संजीव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये है कि जो आरबीआई का जो रिसेंट मूव आया है फ्रॉम जो एमपीसी जो हुई है उसमें अकोमोडेटिव से हमने न्यूट्रल स्टैंस लिया है, तो इसके पीछे सर क्या रीजन है आरबीआई का? नहीं, देखिए जी, जो आरबीआई का स्टैंस इस समय चल रहा है वो अकोमोडेटिव ही चल रहा है अभी ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये देखना है कि क्योंकि जो हमारे आरबीआई गवर्नर आए हैं वो मिनिस्ट्री से आए हैं, उनका तालमेल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ अच्छा है, और उस वजह से जो सरकार का रुख है अकोमोडेटिव होने का और रिलैक्स करने का, लोगों को रिलीफ देने का, उसकी तरफ आरबीआई प्रक्रिया कर रहा है। इससे इमीडिएट लॉस कोई आरबीआई को नहीं हो रहा है। उन्होंने अभी काफ़ी रिटर्न भी दिया है सरकार को, और हम अगर बाकी आंकड़े देखें, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हों, चाहे वो रुपए का स्ट्रेंथनिंग हो, वो भी पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इसलिए नुकसान नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि मार्केट में राहत आए ताकि मनी जो है डिपॉजिट्स की तरफ से निकल के सर्कुलेशन में आए, और वो सर्कुलेशन में तभी आएगा जब ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स रेट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अभी जो एमपीसी कट करके कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि बाहर आदमी जाए वो रख के कहे कि अब कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो मैं खर्चा करके इसको अपने खाने में, पीने में, निवेश करने में, घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में और चीज़ों में इस्तेमाल करूं। और क्योंकि अब आजकल चीज़ें क्रेडिट कार्ड्स पे, लोन्स पे ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन ही है, तो इससे, और अब छोटी छोटी चीज़ें भी अब लोन पे, आजकल तो आप एक टूथब्रश भी लोन पे खरीद सकते हैं, जो पहले आज से 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस तरीके से, और उसको भी ईएमआई पे कर सकते हैं, मतलब 10 रुपये का टूथपेस्ट ले आप उसको भी ईएमआई में करके 2-3-4 महीने में पे करें। तो इस तरीके से जब आप कर सकते हैं तो उसकी दर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उस दर को रिलीफ देके एक कंज्यूमरिज्म बढ़ाने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है। To add to what you're saying, it's this generation's issue that whatever they buy has to be on credit, whereas many decades ago it was buying something on credit, उधार पे कुछ लेना का बहुत negative connotation होता था। It used to be felt as negative और बहुत inferiority के साथ देखा जाता था, but now it's become the norm because we are now copying the West probably. True. All right, more on that some other time. We are now joined by Ratnagar. Ratnagar ji is a regular caller from Mumbai. जी रत्नाकर जी सवाल पूछिए। यस प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। हेलो यस गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि आरबीआई ने 6 दफा रेपो रेट बढ़ाया था और अभी 2 दफा रेपो रेट कम कर दिया है, तो ये रेपो रेट का अपना इकोनॉमिक्स पर कैसा असर होता है, और ये रेपो रेट बढ़ाने का या कम करने का ये कैसा डिसीजन होता है, एक मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल है कि अभी जो रेपो रेट कम करने के बाद जो शेयर मार्केट में छलांग मारी है, उसका रीजन क्या है? वो ऐसे ही मार्केट बढ़ना चालू रहेगा क्या? थैंक यू। देखिए जी, पहली बात तो जो रेपो रेट का डिसीजन होता है, एक कमेटी होती है जिसे एमपीसी के शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है,
वो कमेटी आंकड़ों को देखती है कि किस तरीके से कितना पैसा नहीं है मार्केट में, क्या रिक्वायरमेंट है। वो सरकार की रिक्वायरमेंट्स को भी समझने की कोशिश करती है। ऑल्दो आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका सरकार के साथ डायरेक्ट कोई तालमेल, मतलब जो सरकार चाहे ऐसा नहीं करेगी वो, इसलिए इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है एक सेंट्रल बैंक होकर इंडिया का। वो ये देखता है कि एक भारतवासी के लिए और भारत के लिए क्या अच्छा है, इसके लिए इकोनॉमी के लिए। तो जो रेपो रेट का बढ़ना था पहले, वो बहुत पहले हुआ था। शक्तिकांत दास जी ने, जैसे पिछले गवर्नर थे, उन्होंने काफ़ी साल तक उसको स्टेबल रखा, कोई चेंज नहीं किया। बढ़ना जो था उसके अंदर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा था, उसको स्क्वीज करना के लिए बढ़ाया जाता है ताकि वो मार्केट से पैसा निकल जाए और कुछ इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। अब क्योंकि बढ़ोतरी नहीं हो रही, इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में है, एक नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एक डाउन की तरफ भी जब इन्फ्लेशन जाता है तब भी सरकार के लिए चिंता होती है, बिकॉज एक इन्फ्लेशन को हम कहते हैं एक नेसेसरी ईवल। ये जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है तो मिनिमम ब्लड प्रेशर होना जरूरी है, अगर वो भी नहीं होगा तो हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से इकोनॉमी के लिए एक मिनिमम इन्फ्लेशन लेवल होता है और हिंदुस्तान के लिए वो करीबन 4.5% के आसपास माना जाता आया है जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, जब से देखा गया है। तो उसके तौर तरीके से अगर चलें तो फिर आरबीआई टारगेट करती है कि इस रेंज के आसपास होना चाहिए, क्योंकि बहुत गिर गया था। तो इसलिए एक ये नेगेटिव कम करना रेपो रेट को जरूरी पड़ रहा था ताकि मार्केट में मनी सप्लाई आए, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़े। और जो आपका प्रश्न था वो उसका डायरेक्ट आंसर ये भी मार्केट के लिए इसीलिए है क्योंकि लोगों को अब रिटर्न फिक्स डिपॉजिट्स पे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो अब वो लोग और ऑप्शंस ढूंढेंगे, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड के अंदर हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। और इसीलिए उछाल, क्योंकि अब स्टॉक मार्केट में भी जो पैसा लग रहा है उनमें से करीबन 80% पैसा ऐसा है जो लोन लेके आदमी लगाता है, डायरेक्टली अपना पैसा नहीं लगाता है। तो इसलिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो डे ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो, वो भी निवेश जो है लोन लेके कर रहे हैं उनको, क्योंकि मुनाफा लगता है कि ज़्यादा मिल रहा है और हम रिटर्न पे ऑफ कर सकेंगे। तो इसलिए आप मार्केट में उछाल देख रहे हैं इस समय। और भोपाल से हमारे श्रोता शंकर लाइन पे हैं। शंकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये नई टैक्स रिजीम के तहत अगर जाना है या इसके मद्देनजर व्हाट इज द मिनिमम थ्रेशहोल्ड की सेविंग हो टैक्स की, जिससे कि वो पुरानी रिजीम में जाए? मैंने ऐसा कुछ सुना है कि 8 लाख तक है तभी आपको फायदा, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं है पुरानी रिजीम में जाने के, नए रिजीम में जाना चाहिए। व्हाट इज द थ्रेशहोल्ड लिमिट? हैज एनीवन कैलकुलेटेड दिस? यस, आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 सर, नंबर 2 सवाल छोटा सा है सर। जीडीपी पर कैपिटा इज वेरी लो इन इंडिया, so what is government should do so that at least some we graze on this, because the $2400 साल का तो बहुत ही नीचे आता है हमारे ऊपर से उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं। तो क्या वजह है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं या कुछ और तरीके हैं? थैंक यू। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात करी थी वो थी थ्रेशोल्ड जो टैक्स रिजीम की है। देखिए, काफ़ी सारी सीए फर्म्स हैं, उन्होंने पूरे चार्ट्स बना के दिए हुए हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं गूगल करके। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि किस रेंज में आपकी अगर सैलरी है और क्या रेट लगता है तो आपको कहाँ बेनिफिट रहेगा, किस किस सेगमेंट में बेनिफिट रहेगा। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कौन कौन से बेनिफिट लेते हैं। अगर आप कोई सब्सिडीज जो सरकार दे रही है या बेनिफिट जो कोई सरकार दे रही है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो चाइल्ड का हो, चाहे कोई और ऐसा बेनिफिट हो, होम लोन का हो, वो बेनिफिट्स अगर नहीं ले रहे हैं, पीपीएफ वगैरह में पैसा नहीं रख रहे हैं, तो फिर आपको न्यू रिजीम में ही मूव करना बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप वो बेनिफिट्स ले रहे हैं तो आप मूव करने से पहले 4 बार सोचिए, बिकॉज एक बार आप मूव कर गए फिर वापस ओल्ड रिजीम में आना आपके लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए ये ध्यान रखें। दूसरा, हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू HUF के जो टैक्स सिस्टम होता है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी आप टैक्स प्लान ले सकते हैं और सरकार ये बेनिफिट देती है कि आप एज इंडिविजुअल अपना प्लस एज अ कर्ता ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप अलग से टैक्स फाइल करें। तो उसमें दोनों का बेनिफिट लेके भी आप अपना इनकम को डिवाइड करके और आप अपने टैक्स के अंदर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस नहीं कह रहा हूँ, चोरी करना नहीं कह रहा हूँ, प्लानिंग की बात है, क्योंकि सरकार इस प्रोविजन को देती है। The other part was about the GDP per capita. Yeah, the GDP per capita. देखिए, you should not be getting bothered by GDP per capita. The more important component is the purchasing power. How much can I buy in my 1 rupee which I have in my pocket? India is
हिंदुस्तान जो है विश्व के अंदर टॉप 3 देशों में आता है परचेजिंग पावर के ऊपर। पर कैपिटा कुछ भी हो, पर कैपिटा से फर्क पड़ता है। इसका सबसे आसान तरीका है, अगर आरबीआई चाहे तो ये पर कैपिटा 10 गुनी हो सकती है अगर रुपए को स्ट्रेंथन कर दिया जाए, जो इक्विटेबल रेट्स होते हैं मार्केट को देख के। पर वो चाइना की तरह जैसे करना चाहे अगर कर सकते हैं, पर हम फ्लोटिंग रेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग एकदम से मार्केट को रेट को नहीं बढ़ा सकते। पर जैसे जैसे रुपये का दर बढ़ेगा ऐसे ही जो आपकी पर कैपिटा इनकम में बढ़ेगी, बिकॉज हमारा पर कैपिटा रुपए में होता है। पर जैसे ही हम उसको डॉलर के रेट से डिवाइड करते हैं तो वो गिर जाता है एकदम से। जैसे ही हमारा डॉलर का रेट कम होता जाएगा, मतलब जैसे अभी 84 है, 83 हो, 80 हो, और हमने देखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 2003-4 में 40 रुपए से 30 रुपए की तरफ गया था। एक्सपोर्ट्स में हमारा पॉजिटिव हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमने देखे हुए हैं कि जब रुपया स्ट्रेंथन होता है तो क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसके। जैसे ये होगा तो आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम भी एकदम से शूट अप करेगी आपकी। तो विश्व के देखने के लिए अच्छा है, बट आपकी कंजम्पशन के लिए, बिकॉज आप रुपए में खा रहे हैं, रुपए में कमा रहे हैं, इसलिए आपको डॉलर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जो एक आम इंसान को मतलब होना चाहिए कि मैं 1 रुपए में कितना सामान खरीद पा रहा हूं, पहले से कम है या पहले से ज्यादा है। अगर पहले से ज्यादा है तो खुशी की बात है और अच्छा चल रहा है। Correct. Very often people compare, Indian rupee and the way it is abroad. They will buy a banana for 5 rupees here, but in US or a developed nation, it will probably cost about $50. Correct. Sorry, $1, 50 rupees. Yes. 50 rupees a banana. Yes. So most items in the basket of currencies are normally calibrated this way only. Yeah. So we look at hair cutting prices, we look at buying vegetables from the markets, buying a laptop, some of mobile. So we compare these prices and see what is the equitable rate, and that's how the exchange rate also gets determined technically, and that's why we have a GDP on purchasing power also basis. So based on PPP mode. So our GDP as of today is about $15 trillion on PPP mode. So we are amongst one of the topmost countries in the world with the very high GDP level. अभी तो हम 4 बिलियन की बात कर रहे हैं कि हम क्रॉस किए हैं, उधर हम ऑलरेडी 15 को क्रॉस कर चुके हैं पीपीपी के बेसिस, परचेजिंग पावर के बेसिस पे। तो इसलिए वी शुड बी हैप्पी अबाउट व्हाट वी हैव, एंड बिकॉज वी आर इंटरनल इकोनॉमी। यूएस जो है चीप गुड्स खरीद के मार्केट से अपनी इकोनॉमी को एफिशिएंट रखा हुआ है उसने। हमारी जो इकोनॉमी एफिशिएंट है वो अपने ही गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम हिंदुस्तान में उनको खरीद के हैं। हमारे को जो लॉस होता है वो होता है पेट्रोल बाहर से खरीदते हैं हम, डिफेंस इक्विपमेंट्स पहले बाहर से खरीदते थे, और कुछ चीज़ें हम बाहर से खरीदते हैं जिनकी हमें बहुत अधिक मात्रा में प्राइस देनी पड़ती है, बिकॉज एक्सचेंज रेट हमारा काफ़ी वीक है इस समय। तो इस वजह से होता है। जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली थी उस समय $2 का 1 रुपया होता था। आज जो है 84 है। आप सोचिए $2 का और उस समय हम 99% इंपोर्टिंग कंट्री थे। आज हम 99% सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो डिफेंस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Absolutely wonderful. Nature has blessed us with such, we have almost abundance of everything, all eatables. Well, we are now joined by Prem from Faridabad. जी प्रेम जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जी सर, जो अभी मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वही क्वेश्चन अभी आपने आधे सेकंड पहले यही बोला है कि $2 का 1 रुपया हुआ करता था। हम हिंदुस्तानी इतनी और मेहनत करें कि यही पोजीशन हमारी दोबारा से लौट के आ जाए, $2 का डॉलर और हमारा 1 रुपया होना चाहिए। इसके साथ एक सवाल और है, हम गोल्ड खरीदते हैं, अगर प्योर गोल्ड खरीदते हैं और बिस्किट के तौर पर खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क होना जरूरी चाहिए। और तीसरा एक सवाल और मैं ये पूछना चाहूंगा, आने वाले समय में गवर्नमेंट जो वाहन है, गाड़ियों में बैटरी जो वाली गाड़ियां आ रही हैं, तो आने वाले समय में जो बैटरी उत्पादन हमारे देश में इतना होता है कि नहीं होता कि जिससे हमारी खपत पूरी हो जाए, क्योंकि हमने सुना है कि सारा जो बैटरी से है चाइना से आती है। चाइना ने अभी इस पे थोड़ी सी ब्रेक लगा दी है, क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं। पहली बात तो जो ईवी कार्स हैं, कुछ देशों ने तो उनको बैन कर दिया है यूरोप के अंदर, क्यों? इसी कारण से कि जो ये बैटरी है उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है और ये बहुत बड़ा एक डिस्पोजेबल वेस्ट बनेगा। पर आज के समय में विश्व में और हिंदुस्तान में भी ईवी कार्स का बोलबाला है, और आप ये लेके चलें जहाँ पे हम
भारत सरकार ने गाड़ी की लाइफ 10 और 15 साल निर्धारित कर दी है, तो उस केस में अगर हम ईवी कार को 10 साल का अगर लेके चला रहे हैं, तो इसलिए अभी आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, लिथियम के हमारे पास भी कुछ रिजर्व्स मिले हैं, उसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और जगह से भी आ रही है, सिर्फ चाइना से नहीं लेते हैं। पर क्योंकि चाइनीज़ मार्केट, इसमें चाइनीज़ जो ईवी कार्स हैं उनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा इस समय फैली हुई है विश्व में, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, बट अदरवाइज़ कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। जहाँ तक गोल्ड की आपने बात करी, गोल्ड के अंदर हॉलमार्क लेना एक निर्धारिता दिखाता है प्योरिटी की तरफ, बिकॉज ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एक स्टैंडर्ड है और उसको निर्धारित दिखाता है कि हाँ ये प्योरिटी है इसके अंदर। तो हमेशा ये थोड़ा पैसा ज़्यादा दे के आप प्योरिटी लें और मन की शांति रखें, कहीं पे भी जाएं तो उसको अच्छा रहता है। एक सोना ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा एक इंसान लेके रखता है, कभी दुविधा आती है तभी खर्च करता है या बेचता है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल में भी रखे तभी उसको किसी भी दुकान पे जाएगा हॉलमार्क के नाम से, वो जल्दी आराम से और सही दाम में मिलेगा। तो और चलते हैं रुपए का हाल भी जान लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज मामूली रूप से मजबूत होकर 85 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 99.03 पर चल रहा था। और एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में आज तेजी दर्ज की गई। अमेरिका चीन व्यापार वार्ता पुनः शुरू होने से पहले निवेशकों में उत्साह दिखाई दिया। अमेरिका में अच्छे रोजगार आंकड़ों ने मंदी की आशंका कम होने का असर भी बाजार पर देखा गया। हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 1.63%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.55%, जापान का निकेई 0.92%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.43% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली रूप से 0.05% बढ़ा। दूसरी ओर यूरोप के बाजारों में दिन के कारोबार में गिरावट का रुख दिखाई दिया। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डेक्स में लगभग 0.6%, फ्रांस के कैक में लगभग 0.2% और लंदन के फुट्सी में 0.1% से अधिक की गिरावट चल रही थी। Look at the oil prices. Oil prices showed a positive trend today ahead of trade talks between US and China. Brent crude was trading 0.5% up at $66.97 per barrel. WTI crude was also 0.5% up at $65.07 per barrel when reports last came in. Before we move on to gold, when you talked about gold, so many questions were on Sona and gold. Aman, I was just thinking how Netaji Subhash Chandra, when he was forming the Indian National Army, he asked people to contribute and they gave gold, isn't it? Yes, Indians happen to be the largest, holders of gold, as I said just now. And you can monetize it. And you can monetize it at any time. Right. और सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.37% गिरकर 96,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.72% बढ़कर 1,06,670 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.35% गिरकर 96,695 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.8% बढ़कर 1,06,308 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। अमन जी, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? सोने की अभी हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह का रेट लगातार हम देख रहे हैं बाजार में सोने का, और दूसरी ओर चांदी की भी अगर हम बात करें, चांदी लगातार ही बढ़ती हुई दिख रही है। नहीं, देखिए जी, हिंदुस्तान में सीजनल इफेक्ट भी होता है, बिकॉज शादी के समय होते हैं, त्योहारों के समय होते हैं, उस समय रेट थोड़ा बढ़ता है और उस वजह से भी मार्केट, और इस समय क्योंकि रेट बढ़ा है तो एक आम आदमी भी इसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, सिर्फ गोल्ड बॉन्ड्स में नहीं और चीज़ों में भी ट्रेडिंग कर रहा है, खरीद भी रहा है, बिस्किट्स भी खरीद रहा है, गोल्ड भी खरीद रहा है, ज्वेलरी भी खरीद रहा है, ये सोच के कि वो बढ़ोतरी होगी उससे गेन होगा। इस वजह से हम ये देख पा रहे हैं।
All right, we would have loved to discuss more, and that we should have taken Mr. N.R. Prasad from Bangalore, his call, but unfortunately we could not because time is short. Sorry, Mr. N.R. Prasad. We'll take your call next time for sure, and sorry about this time. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। अमन जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Rally in domestic equity markets continued for the fourth consecutive session. Sensex jumped 256 points to close at 82,445. Nifty also climbed 100 points to close above 25,100. All major Asian markets today ended with gains amid optimism ahead of the resumption of US-China trade talks, and oil prices showed a positive trend today. Well, friends, that's all we have for you with this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amrish Saxena signing off. Namaskar. नमस्कार। Market Mantra.